Hello, dear students. Welcome back. Let's begin with the new question. The question says fit a trend line using method of least squares. Also obtain the trend value for the year 1987. And we are given with years and their corresponding production values. Years are 1976, 1977 all the way up to 1985. And corresponding productions are 0, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 7 and 10. And we have to fit a trend line using method of least square, and also we have to find the value of production for the year 1987. So without wasting time, let's quickly begin with the solution. Dear students, always remember, whenever you have to use method of least squares, you have to follow 4 steps. How many steps? 4 steps. And in the very first step, you have to tabulate the data. Now how to tabulate? ये जो first column है, in this column you have to write the values of years as it is, and in the second column you have to write the values of productions also given in the question, right? So let's note it down, year and production, right? Now if you observe carefully, we are given with 10 observations, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So this is even observation case. Yes, even observation case. अब क्योंकि यहाँ पे हमें even number of observations दिए हुए हैं, that is 10 observations, तो 10 observations में we have two central most values which are 1980 and 1981. So since these two are the central most values, therefore we have highlighted this with red color, right? Now what is the purpose of highlighting this? See, if you observe carefully, these values are very big, right? ये जो x की values हैं, these values are very big. So first of all we need to reduce these values by converting x in terms of t. तो ये जो थर्ड कॉलम है, यहाँ पे हम x को रिड्यूस करके कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? t में. और t में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट इज द रूल? सिंस ये इवन ऑब्जर्वेशन है, राइट? तो इवन ऑब्जर्वेशन में लीस्ट स्क्वायर मेथड अगर हमें यूज करना है, तो x को t में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि ये जो 1980.5 है ये कैसे मिला? तो ये 1980.5 इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ द सेंट्रल मोस्ट वैल्यू. तो यहाँ पे हमारे पास दो सेंट्रल मोस्ट वैल्यूज थी, तो उन दोनों का एवरेज, दैट इज 1980 एंड 1981 का एवरेज इज 1980.5. तो रूल क्या है इवन ऑब्जर्वेशन के लिए? t इज 2 टाइम्स x माइनस central most value. I repeat, what is t? 2 times x minus central most value. And I hope you understood ये central most value हमें कैसे मिली, right? तो remember, this is the transformation for even number of observations, right? Now the first value of x is 1976. So if you substitute x as 1976 over here, so 1976 minus 1980.5 will be minus 4.5, and multiplied by 2 will give you value as minus 9, right? The next value of x is 1977. So if you put x as 1977, 1977 minus 1980.5 will be minus 3.5, and multiplied by 2 will give you minus 7. Similarly, the next value of x is 1978. So 1978 minus 1980.5 will be minus 2.5, and multiplied by 2 will be minus 5. And similarly, you can find minus 3, minus 1, plus 1, plus 3, plus 5, plus 7 and plus 9. So we have successfully transformed x in terms of t. Now in the next column, we have to find t square, right? So t square will be minus 9 ka square plus 81, then minus 7 square will be plus 49, then minus 5 square will be plus 25, minus 3 ka square will be plus 9, then plus 1, plus 1, plus 9, plus 25, 49 and 81. And in the final column we have to find t and y ka product, that is column number 2 and column number 3 ka multiplication. So 0 multiplied by minus 9 will be 0, 2 multiplied by minus 7 will be minus 14, 3 multiplied by minus 5 will be minus 15,
and similarly we can find all the remaining values of ty, right? अब इन सब के बाद you have to get total of all these values. तो ये जो y का total है, sum of y, it will be coming out to be 42. Then sum of t will be 0. Sum of t square is 330 and sum of ty will be 148, right? And ये जो last column है, this last column contains trend values given by y equals to a plus bt. अब इसको फिल करने के लिए एक प्रॉब्लम क्या है, वी डोंट नो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, राइट? तो ये हमारा पहला स्टेप है, हमने टैबुलेट तो कर लिया है, बट ये जो लास्ट कॉलम है ये हमें फिल करना बाकी है, और इसको फिल करने के लिए वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. तो ए और बी को फाइंड करने के लिए वी हैव टू मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 2. सो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2. अब स्टेप नंबर 2 में देखिए, वो जो टेबल हमने बनाया था उस टेबल से हमें n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10. n मीनिंग total number of observations. You can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. n is 10 and sum of y was 42. Then sum of t was 0, sum of t square 330 and sum of ty 148. These are the values obtained from the table, right? Now हमारा टारगेट है वो जो a और b मिसिंग है वो फाइंड करना, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हमें ईयर 1987 के लिए प्रोडक्शन की वैल्यू भी पूछ रहा है. तो ओवरऑल वी आर मिसिंग विथ 3 वैल्यूज, A, B एंड ये जो 1987 के लिए प्रोडक्शन की वैल्यू है वो. तो लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करने के लिए वी हैव टू फॉलो 3 इक्वेशंस, जिनको यूज करके हम वो तीनों मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड? समेशन y इक्वल्स टू na प्लस b समेशन t. The second equation is summation ty equals to a summation t plus b summation t square, and the third equation is y equals to a plus bt. Alright, तो least square method से हमें हमारे पास ये 3 equations available है. These 2 equations are called normal equations and this is called trend value equation, right? इसको use करके हम a की value find करेंगे, इसको use करके हम b की value find करेंगे, और फाइनली इस इक्वेशन को यूज करके हम ये जो 1987 के लिए प्रोडक्शन की वैल्यू पूछ रहा है वो हम फाइंड करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट इक्वेशन. तो यहाँ पे सम ऑफ y को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 42. n 10 है, a अननोन है, तो इट विल बी 10 into a, दैट इज 10a, एंड b इज अननोन बट सम ऑफ t इज 0, तो इट विल बी b into 0, राइट? Now in the next step, b into 0 will be 0. So we are left with 42 equals to 10a. Rearranging this, we get value of a is 42 upon 10, which is a equals to 4.2. तो जो पहला अननोन है a वो हमको मिल गया है 4.2. Now moving on to the second normal equation. Sum of ty is a sum of t plus b sum of t square. Now sum of ty is 148. A we have calculated as 4.2. and sum of t is 0, so 4.2 into 0 plus b is still unknown and sum of t square is 330, so b into 330. Now 4.2 into 0 will be 0, so we will be left with 148 equals to 330b, and rearranging this we get b as 148 upon 330, that is 0.45. अब फाइनली देखिए हमारा जो थर्ड अननोन है ये ईयर 1987 के लिए हमें प्रोडक्शन की वैल्यू फाइंड करना है. मतलब इफ ईयर दैट इज x इज 1987, वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ y. अब देखिए हमने ऑलरेडी जितने भी x की वैल्यूज थी उनको किस में कन्वर्ट कर लिया था, t में, राइट? तो यहां पे भी हम सबसे पहले ये जो x की वैल्यू है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, t में. कैसे? यस, t इज 2 times x minus 1980.5, राइट? दिस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन. Now x can be substituted as 1987, so it will be 2 multiplied by 1987 minus 1980.5, and इसको solve करने के बाद finally we get value of t as 13, right? तो question को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर t 13 है तो what should be the value of y? Now we have the third equation, trend equation as y equals to a plus bt, right? अब इसमें हमें a की वैल्यू पता है 4.2, b की वैल्यू is also known to us, that is 0.45, and t is 13,
तो सब्सटीट्यूट करने पे वी गेट y इज 4.2 प्लस 0.45 इंटू 13, that is 4.2 plus 5.85, and finally we get value of y as 10.05. तो ईयर 1987 में जो प्रोडक्शन की वैल्यू है दैट विल बी 10.05. तो हमने ये जो मिसिंग वैल्यू थी प्रोडक्शन की ईयर 1987 के लिए, वी हैव सक्सेसफुली कैलकुलेटेड दैट वैल्यू. अब हमें दो और काम करने. दिस वाज आवर स्टेप नंबर 2, राइट. टोटल हमें कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं? 4. पहले स्टेप में हमने टैबुलेट किया, सेकेंड स्टेप में भी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ए, बी और ये अननोन वाई की वैल्यू. अब थर्ड स्टेप में वो जो लास्ट कॉलम हमने स्किप कर दिया था, यू रिमेंबर, ये वाला कॉलम, अब इसको फिल करना है हमें, करेक्ट. अब इसको फिल करने के लिए देखिए, वी नो वैल्यू ऑफ ए इज 4.2 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 0.45. तो ये जो फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू है ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए टी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है? -9. तो ए 4.2 है, बी 0.45 है एंड टी की वैल्यू इज -9. तो सब्सटीट्यूट करने पे वी गेट y एज 4.2 प्लस 0.45 मल्टीप्लाइड बाय -9, जो सॉल्व करने पे हमें फाइनल वैल्यू मिलती है 0.15. तो द फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू फॉर t -9 इज 0.15, करेक्ट. अब सिमिलरली इस सेल के लिए आपको a और b तो वही रखना है, बट t की जगह पे क्या आ जाएगा? -7. तो सब्स्टिट्यूट करने पे यू गेट वैल्यू एज 1.05, then 1.95, then 2.85, 3.75, 4.65, 5.55, 6.45, 7.35 and 8.25. तो these are the trend values. तो ये हमारा है स्टेप नंबर 3. अब फाइनल स्टेप नंबर 4 में वी हैव टू फिट ए ट्रेंड लाइन, राइट. मतलब हमें अभी एक ग्राफ में एक ट्रेंड लाइन बनानी है. तो लेट्स मूव ऑन टू द ग्राफिकल पार्ट. ये देखिए, ये हमारा टोटल टैब्यूलेशन था, राइट. अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो x की वैल्यू 1976 से 1985 तक दी हुई है और प्रोडक्शन की वैल्यू 0 से लेके ऑलमोस्ट 10 तक दिया हुआ है. तो हम x एक्सिस पे ईयर को ले लेते हैं और y एक्सिस पे ले लेते हैं प्रोडक्शन को, और दोनों ही एक्सिस पे हम स्केलिंग कर देते हैं 1 सेंटीमीटर एज 1 ईयर एंड 1 सेंटीमीटर एज 1 इंडेक्स फॉर y एक्सिस, राइट. x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 ईयर, y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर एज 1 इंडेक्स. ये हमारा x एक्सिस ईयर और ये y एक्सिस पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राइट. सो दीज आर दी वैल्यूज. अब सबसे पहले हमें ये जो ओरिजिनल प्रोडक्शन की वैल्यूज दी हुई है ये हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे. तो 1976 पे दी ओरिजिनल गिवन वैल्यू इज 0, देन 1977 पे दी ओरिजिनल वैल्यू इज 2, then 1978 the original value is 3, then 1979 the original value is again 3, then 1980 पे value is 2, then 4, then 5, then 6, then 7 and then finally 1985 पे 10, right. अब इनको एक स्ट्रेट लाइंस के थ्रू हमें कनेक्ट करना है. तो लेट्स कनेक्ट ऑल दिस डॉट्स. तो ये हमारा ओरिजिनल प्लॉटिंग है प्रोडक्शन के लिए. अब हमें ट्रेंड लाइन बनानी है, राइट. अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए देखिए, जो हमने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड की है इनमें से कोई भी दो वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है. हाउ मेनी वैल्यूज? एनी 2 वैल्यूज. तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो मैं यहाँ पे 1977 के लिए जो वैल्यू है वो कंसीडर कर रहा हूँ. कितना है 1977 के लिए ट्रेंड वैल्यू? 1.05. आप कोई भी दो वैल्यूज ले सकते हैं, नो हार्ड एंड फास्ट रूल. आई एम कंसिडरिंग 1977 एंड 1.05. ये फर्स्ट पेयर में ले लेता हूँ 1977 पे 1.05, करेक्ट. और दूसरी वैल्यू मैं ले लेता हूं 1985 के लिए. 1985 के लिए दी करस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू इज 8.25. तो 1985 पे करस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू इज 8.25. तो आई हैव कंसिडर 1977 की वैल्यू एंड 1985 की वैल्यू, बट यू कैन कंसिडर एनी 2 वैल्यू, राइट. अब इन दोनों को सिर्फ क्या करना है, आपको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करना है एंड दैट विल बी कॉल्ड योर trend line. So this is your trend line. Hope you have understood this. See you in the next video.